نارملی جو پہلے ہم نے اسباق پڑھے ہوتے ہیں انہیں کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی جنرل ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے آج ہمیں آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کچھ آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں جیسے اوپر لکھا ہوا 183 اور ایک سے لے کر 189 تک، کیونکہ عید سے پہلے جیسے لاسل بھائی نے کہا تھا کہ ہم نے یہ صورت مکمل کرنی ہے، تو آج اگر ہم کرتے ہیں تو اگر کل آخری روزہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس پھر انشاءاللہ کل کا دن بھی ہوگا، اور ہم کل کوشش کریں گے کہ پارہ مکمل کر لیں، اگر کل نہ کر سکے تو انشاءاللہ پھر چاند رات کو ہم یہ مکمل کر سکتے ہیں، تو عید سے پہلے پہلے ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ تو اس لیے آج ہم پہلے یہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جنرل ڈسکشن کی طرف چلیں گے۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ جی السلام علیکم ناصر بھائی، آپ کو ہوسٹ تو ماشاءاللہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اب کوئی اگر درمیان میں اسپیس کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ پھر سارا سنبھال لیجیے گا، میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی آج ہم نے آیت نمبر 183 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، الذین جو لوگ یعنی جن نے قالو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عہدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے عہدہ عہد کیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا مذکر، عہدہ عہد کیا ہے، الینا، الینا دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک ہے الا طرف نا اور دوسرا ہے نا ہماری، طرف ہماری یعنی ہمارے ساتھ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے، کون کہتے ہیں یہ؟ یعنی بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اللہ، اللہ بھی بیسیکلی دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک ہے ان، دوسرا ہے لا۔ ان کا مطلب یہ کہ، لا کا مطلب نہیں، یہ کہ نہیں یا یہ کہ نہ، نؤمن، نؤمن، نؤمن ہم ایمان لائیں، کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، لے رسول، لے واسطے، رسول، دیکھیے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہو نا، الرسول ہوگا تو وہ معرفہ بن جائے گا، تو یہ سمپلی رسول ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی رسول۔ جب الرسول ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کوئی مخصوص رسول، جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہوگی تو پھر الرسول آئے گا، یا کسی اور خاص نبی کے بارے میں بات ہوگی تو پھر ان کے ساتھ بھی الف لام آئے گا۔ تو یہاں پر لرسول، واسطے رسول کے یعنی واسطے کسی بھی رسول کے، حتی یہاں تک کہ، یاتینا، یاتینا وہ لے آئیں، بے قربان، بے ساتھ قربان، قربانی، یعنی جب تک وہ کوئی قربانی نہ لے آئیں، یعنی ایسی چیز نہ لے آئیں کہ جس کو قربانی کے طور پر پیش کیا جا سکے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنے۔ یہ یہود نے ایک بات بنا لی ہوئی تھی کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کو آ کے آسمان سے ایک آگ کھا جاتی ہے، تو جس کی قربانی کو آگ کھا جائے وہ قربانی منظور ہو جاتی ہے اور دوسری منظور نہیں ہوگی، تو یہ انہوں نے اپنے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا۔ تو یہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ یہ کر رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی رسول جو ہے وہ کوئی نشانی ہمارے پاس نہ لے آئے، کوئی قربانی کی شکل میں کہ جس کو آسمان سے آگے آگ کھا جائے، تو تب تک تو ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بے قربان، قربانی، تأکلہ، تأکلہ کھائے ہو اس کو، النار آگ، کہ اس قربانی کو آگ کھا لے آ کے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم، جاء آیا، کم تمہارے پاس، تمہارے پاس آیا یا آئے، رسول، رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، من قبلی، من سے، قبل پہلے، اور یا چھوٹا جو ہے اس کا مطلب میرا، مجھ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، بالبینات، بینات جو ہے بی ساتھ البینات، بینات جو ہے یہ بینہ کی جمع ہے، اور بینہ کا مطلب وہ چیز جو روشن ہو، روشن دلیل،
ایسی دلیل جس میں کوئی شک نہ ہو، ساری کی ساری بالکل کلیئر ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پہلے بھی اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور کھلی نشانیاں لے کے آ چکے ہیں، وَبِالَّذِي، و بھی اور ساتھ الذی اس کے، کل تم جو تم نے کہا، جو تم کہتے ہو، یعنی جو مجھ سے پہلے کہتے ہیں، جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو، تو یہ مجھ سے پہلے جو رسول آئے ہیں تمہارے پاس، تم ان سے کہہ چکے ہو، تو وہ تمہارے لیے یہ قربانیاں جو تم کہتے ہو وہ بھی پیش کر چکے. فَلِمَا، فا پس لما، کیوں، لما کا مطلب کیوں، پس کیوں، قتلتموہم، قتلتو، قتل کیا، قتلتمو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، قتلتمو تم نے قتل کیا، ہم ان کو. اب ذرا یہ بتاؤ، پہلے تمہارے پاس جو رسول آئے تھے وہ تو تمہارے پاس نشانیاں لے کے وہ بھی آئے تھے، لیکن پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم رسول تمہارے پاس نشانیاں لے کے آئے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ان اگر، کن ہو تم لوگ، صادقین سچے، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ذرا بتاؤ جو رسول تمہارے پاس پہلے آئے تھے نشانیاں لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، ان کو تم نے قتل کیوں کیا تھا؟ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. فَإِن پس اگر، کذبو کا، کذبو وہ تکذیب کر دیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. پس ان اگر، کذبو تکذیب کریں، جھٹلا دیں، کا آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، فقد پس تحقیق، کذبا جھٹلائے گئے، رسول بہت سے رسول، رسول کی جمع ہے، تو بہت سے رسول جھٹلائے گئے، من قبلک من سے، قبل پہلے، کا آپ کے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، جاؤ وہ آئے تھے، جن رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا وہ لوگ جاؤ آئے تھے، بالبینات واضح دلیلیں لے کر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے، اتنی دلیلیں عطا فرمائی تھی، لیکن یہ لوگ تو ان کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے تھے، یہود نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. جاءوا بالبینات وہ آئے تھے واضح دلیلوں کے ساتھ، والزبر زبر جو ہے یہ زبور کی جمع ہے، اور زبور یہ ہم کہتے ہیں جیسے تختیاں ہوتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر وہ تختیاں جن کے اوپر لوگوں کی ہدایت کے فرامین لکھے ہوئے ہوں، اخلاقی مواعظ لکھے ہوئے ہوں، کہ جن سے انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہو. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ صحائف دیتا تھا تو ان صحائف کو بھی زبر کہا جاتا ہے. تو وہ آئے تھے اللہ کے نبی، ان کے پاس اللہ کے رسول جو آئے تھے وہ ان کے پاس کیا لے کے آئے تھے؟ واضح نشانیاں لے کے آئے، بینات لے کے آئے، اور دوسری کیا چیز ہے جو وہ لے کے آئے؟ والزبر، اور وہ زبور لے کے آئے، تختیاں لے کے آئے، وہ رسائل لے کے آئے جو کہ ان کی معزت کے لیے یا ان کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے. والکتاب، اور کتاب، المنیر روشن، اور روشن کتاب لے کر آئے. کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی جو اصطلاح قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا وہ مجموعہ اور احکامات کا وہ مجموعہ کہ جس کے اندر کسی قوم کی ساری رہنمائی کا پورا ایک طریقہ کار واضح کیا گیا ہو، تو اس کو فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہے. تو وہ کتاب لے کر آئے، المنیر روشن کتاب. اب دیکھیں یہاں پر جو منیر ہے یہ انارہ اس کا مصدر ہے، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ ہے نور، اور نور دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ نور ہے جس کو ہم روشنی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، تو جسے ہم وائٹ لائٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو کلرز ہیں بیسک 3 کلرز ہیں، اور انہی کی مختلف کمبینیشنز کی وجہ سے ہمیں مختلف چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو
एक तो ये नूर है, ज़ाहिरी नूर जिसको कहते हैं, और दूसरा वो नूर है जिसे हम नूर बसीरत कहते हैं, जो कि इंसान के बातिन को रोशन करता है, जिससे इंसान को किसी चीज़ की हकीकत का पता चलता है। तो ये 2 तरह के नूर हैं। एक नूर है जिसका ताल्लुक जो है वो मादी अजसाम के साथ है, और एक नूर वो है जिसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, जिससे इंसान को रूहानी रोशनी मिलती है। तो ये 3 मौजूज़ात का ज़िक्र यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास पहले अंबिया आ चुके हैं। उन अंबिया को रोशन निशानियाँ मैंने दी, उनको मैंने ज़ुबुर दिए, और उनको मैंने किताबें मुनीर दी थी, ताकि ये लोग रहनुमाई हासिल करें। लेकिन ये लोग तो उनके ऊपर भी ईमान नहीं लाए थे। आगे फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु हर एक, सब। नफ्सिन, नफ्सिन किसे कहते हैं? नफ्स जान जिसके अंदर जिंदगी मौजूद हो, जो सांस ले रही हो, मुतनफ़स जिसे हम कहते हैं ना, मुतनफ़स कहते हैं कि जो सांस ले रही हो चीज। तो हर वो चीज जो सांस ले रही है, जो जिंदा है। जाइकतु, जायका कहते हैं चखने को। जिसे हम कहते हैं, हम उर्दू में ये लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी जायका, इस फलां चीज का जायका चखें। तो वो बेसिकली होता है कि इसको चखें, और चखने को ही जायका कहा जाता है। तो जायकतु चखना है, अल मौत, मौत। ये अल्लाह तबारक व तआला एक खबर दे रहे हैं लोगों को, ये एक हकीकत बता रहे हैं कि सारी जाने, कुल्लु नफ्सिन, हर वो चीज जो सांस ले रही है, जो जिंदा है, जाइकतु, वो चखेगी, अल मौती, मौत को चखना है उसको, मौत। व इन्नमा, व और इन्नमा, इन्ना बेशक, मा जो, लेकिन इसको हम कहेंगे कि इसके सिवा कुछ नहीं। इन्नमा यानी बेशक, इन्नमा बेशक। तो वफ़ौना, तो तुम, वफ़ौना, हम एक लफ्ज उर्दू में पढ़ते हैं वफा। वफा का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा करना, कि जो वादा किया हुआ है उसको पूरा कर देना, जो किसी से कहा हुआ है उसको, जैसे हम कहते हैं इफ़ाए अहद, ये भी उसी लफ्ज से, उसी मसदर से निकला हुआ है। इफ़ा का मतलब पूरा करना, इफ़ाए अहद वादे को पूरा करना, और वफा अपनी बात को पूरा करना, कि जो कहा हुआ है वैसा करके दिखा देना, इसे हम कहते हैं कि ये वफा है। और वफादार लोग हम उन्हीं को कहते हैं ना, कि जो जिससे जो बात कर लेते हैं उस बात को वो पूरा पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा पहुंचा देना, पूरा दे देना। तो फरमाया यहाँ पर कि जो लोग, व इन्नमा, और बेशक, तो वफ़ौना, तुम लोगों को वफ़ौना पूरे का पूरा दिया जाएगा। उजूरकुम, उजूर अजर की जमा है, और अजर कहते हैं बदले को। उजूरकुम, उजूर अजर, कुम तुम्हारे, तुम सबको तुम्हारे अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। यौमा, दिन, अल क़यामत, क़यामत के, क़यामत क़याम से है, और क़याम किसको कहते हैं? खड़े होने को, कि वो दिन जिस दिन सारे के सारे लोग जितने भी गुजर चुके दुनिया से, और जो अभी हैं ये भी मर जाएंगे, वो दिन जिस दिन ये सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, या जिस दिन हिसाब को खड़ा किया जाएगा, जिस दिन सारी की सारी बातें, जो कुछ हो चुका है दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से उठा देगा, सारा कुछ इकट्ठा करके एक जगह पे लाया जाएगा, और लोगों से उनका हिसाब शुरू किया जाएगा। तो यौमुल क़यामा यानी उठाने का दिन, क़यामत का दिन। और क़यामत के दिन तुम सब के बदले तुम सबको एक पूरे के पूरे दिए जाएंगे। फमन, बस जो कोई, ज़ुहज़िहा, अल्लाहु अकबर। ये बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई खूबसूरत आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया फमन, बस जो कोई, ज़ुहज़िहा, ज़हज़हा मस्दर से है ना, उससे ये निकला है, और इसका मतलब है दूर कर देना। तो ज़ुहज़िहा, जिसको दूर कर दिया गया। जैसे हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं ना कि ये जो है डायरेक्ट, ये है पैसिव वॉइस, और ये एक्टिव वॉइस है। तो ये यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, कि यानी इसमें जिसको दूर कर दिया गया, या जो दूर कर दिया गया। फमन, बस जो कोई, ज़ुहज़िहा, दूर कर दिया गया, हटा दिया गया, अनिन नार, आग से, व और उदखिला, दाखिल कर दिया गया, व और उदखिला, दाखिल कर दिया गया, अल जन्नता, जन्नत में, जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, या जिसको आग से दूर हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द, पस तहकीक, ये यकीनी बात हो गई, पस तहकीक, फाज़ा, फाज़ा फौजन से है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं फौज, और फौज से फिर जैसे खवातीन का नाम रखा जाता है फौजिया, तो मतलब जो कामयाब हो जाए, फौज कहते हैं कामयाब हो जाने वाले को, तो फाज़ा कामयाब हो गया।
अब ये कामयाबी जो है ये हमेशा हमेशा की कामयाबी, मुकम्मल कामयाबी, तो वो कामयाब हो गया। वमा और नहीं है अल हयातु, हयात जिंदगी को कहते हैं, उर्दू के अंदर हम आम ये पढ़ते हैं, जैसे जिंदगी का जो इल्म है उसको हयात यात कहा जाता है, तो हयात का मतलब जिंदगी। वमा और नहीं है अल हयातु दुनिया, दुनिया की जिंदगी, इल्ला मगर, मताउ, मताउ इसका मतलब क्या हुआ, सामान, जैसे हम कहते हैं ना मालो मता, कि जो बंदे के पास जो कुछ होता है, जितना भी सामान होता है, जितना कुछ बंदे के पास होता है उसको हम मता कह देते हैं कि फलां की ये मता है। तो मता सामान है। अल गुरूर, गुरूर कहते हैं वो जो झूठी उम्मीद दिलाए, जो कि धोखा दे। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ये दुनिया जो है, ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये क्या चीज है, मता उल गुरूर है, ये तो धोखे का सामान है। इसमें जो जैसा है असल में वैसा नहीं है। इसमें जो कामयाबी नजर आती है असल कामयाबी वो नहीं है। हमें जो कुछ देखे नजर आता है मादी तौर पर, मादी तौर पर भी असल में वैसा नहीं होता। हमें जो चीजें सॉलिड नजर आती हैं वो हकीकत में उस तरह से नहीं होती जैसी कि हमें नजर आ रही होती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया की सारी जिंदगी जो है इसमें इंसान, इस सारा सामान जो है ये इंसान के लिए धोखे का सामान है। तो ये झूठी उम्मीदें दिलाने वाला है और इसके अंदर फ्रेब ही फ्रेब है। इसके बाद आयत नंबर, अगली आयत, ला तुबला वुन्ना, ला अलबत्ता, तुबला, तुबला वुन्ना। अब इसमें जो मादा है लफ्ज का वो है बलाउन। बला क्या होती है, हम आमतौर पर बला को कह देते हैं मुसीबत, और मुसीबत क्या होती है, जो चीज पहुंच जाए, और पहुंचने वाली चीज क्या, जिससे इंसान की आजमाइश हो रही हो, तो बला कहते हैं बेसिकली आजमाइश को। तो हम एक लफ्ज पढ़ते हैं उर्दू में, मुबतला हो गया, फलां फलां चीज में मुबतला हो गया। मुबतला मतलब उसको इब्तला में डाल दिया गया, उसको आजमाइश में डाल दिया गया। इंसान जब किसी चीज में मुबतला होता है तो असल में इन अल्फाज का जो इनकी इस्तखराज किया गया है ना, जहाँ से वो लोग जिन्होंने ये लैंग्वेज पे काम किया वो बड़े समझदार लोग थे। तो इसका मतलब यह है कि किसी को किसी आजमाइश के अंदर डाल देना। तो फरमाया कि लतुबलवुन्ना, अलबत्ता तुम आजमाए जाओगे, ये भी पैसिव वॉइस है, अलबत्ता यकीनन तुम आजमाए जाओगे। फी अमवालिकुम, फी में अमवाल माल की जमा है, तो अमवाल कुम तुम्हारे, तुम अपने मालों में आजमाए जाओगे। जो अल्लाह तुम्हें माल देगा वो किस लिए देगा, ये सारी की सारी आजमाइश है। दुनिया के अंदर इंसान को कुछ भी मिलता है ये सारे का सारा आजमाइश के लिए है। एक खुशी मिलती है उसमें भी इंसान को आजमाया जा रहा है। कोई खुदा न खास्ता इंसान को गम मिलता है तो उस गम में भी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को आजमा रहे हैं कि इसका बिहेवियर क्या होता है। अब इस चीज को पाने के बाद या इस चीज को लूज करने के बाद इंसान क्या करता है, तो ये सारी उसकी आजमाइश हो रही होती है। तो फरमाया कि तुम्हारी मालों के अंदर व अनफुसिकुम, अनफुस जो है वो नफ्स की जमा है, नफ्स जान को कहते हैं। तो तुम्हारे कुम तुम्हारे और तुम्हारी जानों में, कि तुम आजमाए जाओगे अपने मालों में भी और अपनी जानों में भी। वला तस्माउन्ना, वला और अलबत्ता, तहकीक, तस्माउन्ना, समात का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, समात सुनने को कहते हैं। तो तस्माउन्ना तुम जरूर सुनोगे, ला तस्माउन्ना अलबत्ता, और वा और ला, अलबत्ता, तस्माउन्ना तुम सुनोगे, मिन अल्लजीना, मिन से अल्लजीना उन लोगों, यानी लोगों से, ऊतू जिनको दिया गया है या जो दिए गए हैं, अल किताबा किताब, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, यानी तुम उन लोगों से सुनोगे जो तुमसे पहले जिन्हें किताब दी गई, व मिन अल्लजीना और उन लोगों से भी, अशरकू जिन्होंने शिरक किया, जिन्होंने शिरक किया, अजन अजियत, अजन इजा अजियत यानी जरर जो किसी जानदार को पहुंचती है, कसीरन बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोग हैं ये तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे। ऐ मुसलमानों, अब इस चीज के लिए तुमने तैयार रहना है कि तुम्हें इन लोगों से ये जो किताब जिनको दी गई है, मतलब यहूद हैं, नसारा हैं और जो मुशरिक हैं, इनकी तरफ से तुम्हें तकलीफ दी जाएगी। व इन और अगर
तस्बीरू, अब ये सारा वाक़या पीछे हो चुका ना, हमने पढ़ चुके हम, जंगे उहद का हो चुका, और जंगे उहद के बाद फिर जो कुफ़ार ने जंगे उहद से भागते-भागते फिर एक जगह पे जाके रुके, और उन्होंने फिर कहा कि हम दोबारा से जाके मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं, और फिर मुनाफ़िकीन ने ये चीज़ खबर आके उड़ा दी कि देखो वो बड़ी ज़्यादा तैयारी के साथ आ रहे हैं, आप तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुसलमान दोबारा से उनके मुकाबले के लिए चले गए, और जाते-जाते फिर उस वक़्त हज़रत अबू सुफ़यान ज़ाहिर है वो तो मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने जाते-जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगले साल फिर आएँगे यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, वैसे ही और बद्र के मुकाम पे आएँगे। तो बद्र सुगरा का जो मार्का है, तो उसके बारे में फिर कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को तैयार किया 1 साल के बाद, और फिर आप मुकाबले के लिए वहाँ पर चले गए। लेकिन हुआ क्या? ये हम कल की आयत में पढ़ चुके हैं कि फिर हुआ क्या कि वहाँ पर अबू सुफ़यान ने एक बहाना बनाया, और उसके दिल के ऊपर ऐसा रोब बैठ गया मुसलमानों का कि मुकाबला करने की हिम्मत ना हुई, और रास्ते में ही एक बहाना बनाकर एक बंदे को 10 ऊँटों का लालच दे के कहा कि जाओ तुम जाके तो मुसलमानों को रोकने की कोशिश करो, और खुद कहा कि हमें तो खुशहाली का जो है ना वो मसला दरपेश है, इसलिए हम वापस मक्का जा रहे हैं। ये एक बहाना करके वो वापस चले गए। मुसलमान इसी तरह से जा रहे थे, तो एक रास्ते में वहाँ पर एक जगह आती थी, वहाँ पर एक सालाना मेला लगता था। तो जंग तो ना हुई, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ पर जाके खूब तिजारत की, और बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नफ़ा अता फरमाया। कल की आयत में हमने इसके बारे में पढ़ा भी कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से मुसलमानों को बहुत कुछ अता फरमाया। तो वो वाक़या जब वो पेश आ चुका था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो है ना, ये तुम्हें तकलीफ़ ज़रूर देंगे, या तकलीफ़ देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। व इन, और अगर तस्बीरू, तुम सब्र करोगे, वो तत्तकू, और तुम तकवा अख्तियार करोगे, व इन्ना, पस बेशक, ज़ालिका, ये, यानी ये जो बात है जिनका ज़िक्र हुआ है कि तुम अगर सब्र करो और तकवा अख्तियार करो, तो ये क्या चीज़ें हैं? ज़ालिका, ये है मिन, से, अज़्मिल उमूर, अज़्मिल उमूर मतलब ऐसे काम हैं जो कि अज़ीमत वाले हैं। अज़ीमत किसे हम कहते हैं? जिसमें इरादा हो, जिसमें इंसान कहे कि हाँ, पक्की बात हो कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, इंसान के इरादे के अंदर पुख्तगी आ जाए, तो ये चीज़ें जो है ये इरादे की पुख्तगी के काम वाले काम हैं। तो ये अज़ीमत वाले उमूर में से है, क्या चीज़? कि इंसान सब्र करे, और इंसान अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करे। इसका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ज़िक्र फरमा लिया। अगली आयत की तरफ चलते हैं। वइज़ अख़ज़ अल्लाह, वइज़, और जब, अख़ज़, अख़ज़ लिया, अख़ज़ किया, हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, अख़ज़, अख़ज़ करना, तो उसका मतलब होता है ले लेना। अख़ज़ अल्लाहु, लिया अल्लाह ताला ने, मीसाक़ा, मीसाक़ पुख्ता अहद को कहते हैं। मीसाक़ उस अहद को कहते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़, दोनों तरफ की पार्टीज़ उस पे मुत्तफ़िक हो जाएँ। जब अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया, अल्लज़ीना, उन लोगों से, ऊतुल किताबा, जिनको किताब दी गई थी, लतुबय्य, लतुबय्यिनुन्नहु, ला, अलबत्ता, तुबय्यिनुन्नहु, तुम ज़रूर पूरी तरह इसे बयान करो, खोल कर बयान करो। किसको? इसको, यानी किताब को, कि इसको पूरी तरह बयान करो। लिन्नासी, ली वास्ते, अन्नासी, लोगों के, वला, और ना, तक्तुमूनहु, और ना, तक्तुमू, छुपाओ, तक्तुमूना, छुपाओ, हु, उसको, किताब के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको छुपाना नहीं है। जो कुछ अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, जो अहकामात हैं, सारे का सारा लोगों को ये बताना है। अल्लाह ने इनसे ये वादा ले लिया था, यानी बनी इसराइल से ये पुख्ता वादा कर लिया था कि जो किताब उनको दी जा रही है, सारी की सारी मुकम्मल तौर पर लोगों के सामने वो बयान करनी होगी, और किसी बात को वो छुपाएंगे नहीं। फनबज़ूहु, फ, पस, नबज़ूहु, उन्होंने इसको फेंक दिया। ये लफ्ज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने इसको फेंक दिया, ये जो वादा था, इस वादे को उन्होंने फेंक दिया। वराअ, वराअ मतलब कि किसी आड़ और दूर फेंक देना, जैसे हम कहते हैं वराउल वरा, बहुत ही दूर, दूर से भी दूर। तो उन्होंने इसको फेंक दिया, दूर फेंक दिया। ज़ुहूरिहिम, ज़ुहूर मतलब जो है वो ज़हर से है, मतलब ये पुश्त, ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे। उन्होंने इस वादे को, इस मीसाक को अपने पीछे फेंक दिया। पीछे फेंकने का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे फेंक दिया कि जैसे कि याद ही ना हो, कोई चीज़ हो ही ना। नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, उसको उन्होंने पसे पुश डाल दिया, जैसे उर्दू के अंदर हम कहते हैं पसे पुश डाल देना, उस पे अमल नहीं किया। व इश्तरऊ, व, और इश्तरऊ, बेच डाला, बिही, इसको, समनन कलीला, समनन मतलब कीमत, कलीला थोड़ी सी, और इस वादे को थोड़ी सी कीमत पर उन्होंने
बेच डाला, फबिअसा, बस बहुत ही बुरा है, यश्तुर यश यश्तरून, जो कुछ के वो खरीदते हैं। जिस चीज को वो खरीद रहे हैं, मतलब अल्लाह के वादे को बेचकर जो चीज वो खरीद रहे हैं, ये बहुत ही बुरी है। ये इससे अगली आयत की तरफ चलते हैं। आज आयत को थोड़ी सी ज्यादा है, या मेरा ख्याल है यहाँ पर हम मुकम्मल कर लेते हैं। इससे आगे जो आयत है उनमें सारी दुआएं हैं। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत चीज का जिक्र फरमाया और उसके बाद फिर दुआएं मुसलमानों को अता फरमाई हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला से मांगना है। तो एक आयत सिर्फ पढ़ लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कल बाकी आयत में से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। ला, मत, या ना, तहसबन्ना, गुमान करें, अल्लज़ीना, वो लोग, ना गुमान करें, हरगिज ख्याल ना करें, अल्लज़ीना, जो लोग के यफरहूना, खुश हो रहे हैं। फरह जैसे होता है ना, या फरहत होता है या फरहान होता है, तो इनका मतलब होता है खुश होने वाले। तो यफरहूना, वो खुश हों, वो खुश ना हो, फरहत का इजहार ना करें, बिमा, उस चीज के ऊपर, अतऊ, दिए गए हैं, जो लाते हैं, अतऊ, लाते हैं, कि यानी जो कुछ वो अपना जो कर रहे हैं उसके ऊपर वो किसी खुशफहमी का अ, इजहार ना करें। वयुहिब्बूना, और वो पसंद करते हैं, ऐ, ये के, युहमदू, उनकी तारीफ की जाए, और वो अपनी तारीफ को पसंद करते हैं, बेमा, साथ उस चीज के या इस काम पर, लम यफअलू, जो कि उन्होंने किए नहीं हैं, यानी अपने बगैर किए हुए कामों के ऊपर भी वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ की जाए। फला, पसना, तहसबन्नहुम, तहसबन्नहुम, उनको तुम ख्याल करो, यानी उनके बारे में मत समझो या उनके बारे में गुमान ना करो, बेमफाजतिन, कि वो कामयाब हो जाएंगे, मिनल अजाबी, अजाब से। हमने पहले भी फाजा पढ़ा है ना कि कामयाब हो जाना, बेमफाजतिन, यानी उनको बचा लिया जाएगा या वो निजात पा जाएंगे या वो कामयाब हो जाएंगे, मिनल अजाबी, अजाब से। वलहुम, और उनके लिए है, अजाबुन, अजाब, अलीमुन, दर्दनाक, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो लोग अपने करतूतों पर खुश हो रहे हैं और चाहते हैं कि उनके कामों के लिए उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने कभी किए भी नहीं, तो तुम हरगिज ये ना समझना कि वो अजाब इलाही से बच रहेंगे। अगर कोई उनकी तारीफ भी कर देता है या वो अपनी ही बातों में अपने आप में खुश हो रहे हैं कि हम तो कोई बहुत से बड़े बड़े हमने काम कर लिए, तो उनकी वो ये हरगिज ना समझे, तुम उनके बारे में ये हरगिज ना समझो कि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे। यकीनन उनके लिए बहुत ही बुरा अजाब, दर्दनाक अजाब तैयार है। ये आज तर्जुमा यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी मुख्तसर तफसीर की तरफ चलते हैं, बा मुहावरा तर्जुमा और साथ उसके तफसीर इंशाअल्लाह। थोड़ा 1 मिनट का वक्फा लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह शुरू करते हैं।